Welcome, friends. Today's online session for the chapter Interacting with Database. So, in this session, we study about the connection interface and driver manager class. So, as all of you knowing that in previous sessions, we study about the basic introductory part of this JDBC API and with this JDBC API, we are having one two interface, connection interface, and one driver manager class. So these are important one for the basic connectivity to the database. So as you all of you knowing that, so we study about the JDBC part. The JDBC is you knowing that what is the JDBC is. JDBC is the Java database connectivity, and it is an one API which mainly deals with the connections of the Java program or application with the database. And JDBC drivers, JDBC drivers is defined the interfaces in JDBC API for connecting and interacting with the database servers. For example, opening database connections, sending SQL statements, receiving results these are processing by the JDBC API. So mainly the java.sql package that can be having all the classes and interfaces that are used for this. So basically we study the two-tier architecture and three-tier architectures. Then we study the different drivers that are available in this JDBC API. So today we turn to the next point, that is the connection interface and driver manager class. Okay, so first of all, know the basic part of our the database programming. Already in a previous session we study about the what are the different steps of our the Java application is connect to the database. So basically यहाँ पे you have to see that total 6 steps are important for this. These are the steps you have to know every time for the processing of our the Java database connectivity. तो यहाँ पे देखिए कि first step is what registered and load the driver. Okay, so for this we can be use the java.sql class or interface. It is the driver manager. Okay, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड एंड लोड द ड्राइवर, तो उसके लिए कौन है, ड्राइवर मैनेजर क्लास. देन सेकंड वन इज द डिफाइन एंड एस्टेब्लिश द कनेक्शन. तो विच वन इज अवेलेबल, इट इज द कनेक्शन इंटरफेस. देन थर्ड इज क्रिएट द स्टेटमेंट. तो वहाँ पे कौन है अवेलेबल, स्टेटमेंट. फोर्थ एग्जीक्यूट द क्वेरी. फोर्थ वन इज द स्टेटमेंट एंड फिफ्थ वन इज प्रोसेस द रिजल्ट. तो वहाँ पे कौन है, रिजल्ट सेट. एंड फाइनली यू हैव टू क्लोज द कनेक्शन. तो वहाँ पे अवेलेबल कौन है, कनेक्शन. तो इन दिस वे यू कैन बी प्रोसेस योर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ आवर द डेटाबेस कनेक्टिविटी. अगर यह आपको एक बार ये स्टेप्स समझ में आ गए तो ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगे. तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम डेवलप किया था. तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे देखिए तो
तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम किया था. ओके, तो बेसिकली इफ यू हैव टू सीन दिस प्रोग्राम. ओके, देन अब यहाँ पे देखिए कि यह मैंने प्रोग्राम किया है. अब इन दिस प्रोग्राम वी हैव टू जस्ट सीन द बेसिक स्टेप्स ऑफ और द जावा डाटाबेस कनेक्टेड. अब यहाँ पे देखिए कि पहला जो है, आई जस्ट इंपोर्ट द क्लासेस. सेकंड वन, आई क्रिएट द क्लास एंड देन एज यूजुअल पब्लिक स्टैटिक void में. Okay, then this is the try block, and then after these are the catch blocks, different blocks. In these I can use the exception, SQL exception, class not found exception, and if any exception will be occurred and the programming, they can be created solved by this. Okay, तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट स्टेप जो है मेरा फर्स्ट स्टेप. ओके, जस्ट वी हैव टू सीन इन दिस प्रोग्राम. तो आपका जो है फर्स्ट स्टेप कौन सा है? इट इज द रजिस्टर्ड द ड्राइवर. यहाँ पे पहला स्टेप कौन सा है आपका? रजिस्टर्ड द ड्राइवर. तो हाउ यू कैन बी रजिस्टर्ड द ड्राइवर? सिंपल, क्लास डॉट फॉरनेम सन डॉट jdbc डॉट odbc jdbc odbc. इज इट क्लियर? देन व्हाट सेकंड स्टेप देखिए आप. सेकंड स्टेप में क्या किया है मैंने? एक सिंपल, आई क्रिएट द URL एंड इन दिस URL जस्ट आई राइट द स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग में क्या रहता है? पहले की प्रोटोकॉल, ड्राइवर और DSN. प्रोटोकॉल कौन सा है तुम्हारा? JDBC. ड्राइवर कौन से? ODBC. एंड DSN कौन सा है? स्टूडेंट DSN. और फिर यहाँ पे मैंने एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है और दैट इज connected with this driver manager class through URL string and then I get the output. तो थोड़ा सा यह दो ही स्टेप हम आज देखने वाले हैं. उसके बाद में थर्ड स्टेप रिजल्ट स्टेटमेंट, देन रिजल्ट सेट एंड देन क्लोज द कनेक्शन. ओके, सपोज डू यू वांट टू बी फाइंड आउटपुट ऑफ दिस. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है? MS एक्सेस में एक सिंपल डेटाबेस कनेक्ट किया है और या just simple, it is a very simple steps. if you want to be जो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो है जो फोल्डर में मैंने किया है वो फोल्डर का पाथ मैं दे रहा हूँ. ओके, अब यहाँ पे मेरा जो फाइल है उसको फाइल नेम का नाम क्या है? वेलकम. फर्स्ट आई कंपाइल दिस. यहाँ पे मैं कंपाइल करूँगा. तो यू हैव टू जस्ट गेटिंग देयर इज अ if error will be in this program, there is no error, and then simple I just इसको मैं रन करके दिखाता हूँ. तो ओ सॉरी, तो sorry, it is again I open my dot class file. So what is my syntax is welcome, okay, Java and file name. Oh, it is the case sensitive, so there may be a problem. Okay, you have to see that what is this driver loaded, connection loaded, and then I get the information of our the database. Are you getting this?
So in this way you can be process your the database through the database programming. So today we just start the step number 1 and 2, so you become the familiar of this. So अब देखिए कि पहला जो स्टेप्स है यहाँ पे, यू हैव टू क्रिएट द DSN नेम. Okay, so how to create the DSN name? If you just make the programming with the Java base and MS Access, you make the DSN name. So DSN name के लिए कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा आपको. देन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, डेटा सोर्सेस, यहाँ पे आपको ODBC मिलेगा. यहाँ पे टैब है आपका DSN, उसमें ऐड कीजिए. अप्रोप्रिएट डेटाबेस जो भी आपका सेलेक्ट कीजिए और then you can just make the finish and then finally your setup होने के बाद आपका जो भी MDB फाइल है, CCDB फाइल है, वो आपको अटैच करना पड़ेगा और DSN नेम विल बी अपीयर इन द डेटा सोर्स. अब देखिए कि यहाँ पे जो मैंने स्टेप्स आपको बोले हैं वो सिंपल में, ये देखिए फर्स्ट स्टेप इस क्या है, कंट्रोल पैनल में जाना है. कंट्रोल पैनल में आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स. तो यहाँ पे अगर ये 7 है, विंडोज 7, तो यहाँ पे मेरा सामने दिखता है ODBC में जाना है. अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये DSN नेम प्रिपेयर करके रखा है, जो स्टूडेंट DSN जो है, देखिए आप स्टूडेंट DSN, यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए हैं. ये देखिए यहाँ पे मेरा जो है ड्राइवर कौन सा है, DSN कौन सा है, स्टूडेंट नेम, ड्राइवर कौन सा है ODBC, और प्रोटोकॉल कौन सा है JDBC. तो यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी एडेड है, ओके, तो उसका जो डिटेल्स मेरे को अगर देखना है तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट DSN है, यहाँ पे डेटाबेस C ड्राइव, AGP, JDBC, स्टूडेंट ACCPDB, ये डेटाबेस मैंने यहाँ पे ऐड किया है. ओके, तो सिंपल वन है, समझो आपको ऐड करना है तो आप ऐड में जाइए. ऐड में जाने के बाद में आपको जो भी डेटाबेस लेना है वो उसको ले लीजिए. फिर आपका डेटा सोर्स जो है आप उसको टाइप कीजिए. सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट द डेटाबेस. आपका डेटाबेस जो भी है उसको आप सेलेक्ट कीजिए. अगर आपका डेटाबेस C ड्राइव में, AGP प्रोग्राम में, JDBC में, जहाँ भी आपका प्रोग्राम है वहाँ आपको जाना पड़ेगा. इन दिस वे अब यहाँ पे आपका डेटाबेस जो है वो कहाँ पे है, ये आपको C ड्राइव पे ओके. तो जैसे भी आपका डेटाबेस आपको अटैच होता है, तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारा अगर डेटाबेस कहाँ है वो हमको देखना पड़ेगा पहले. ये देखिए हमारा डेटाबेस कौन सा है, स्टूडेंट है. अब ये देखिए हमारा डेटाबेस जो हमने क्वेरी की थी, या जो भी रिजल्ट है हमारा, रोल नंबर, नेम या सिटी. तो बेसिकली ये जो डेटाबेस हमारा AGP प्रोग्राम JDBC वहीं पे है. तो शायद तो ये देखिए हमने प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे है ऑल फाइल्स डालना पड़ेगा.
ऑल फाइल्स। तो यहाँ पे मैं, अगर आपका डेटाबेस है स्टूडेंट, तो मैं उसको सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो मैंने जो अभी क्या किया, डी ये जो है ये नाम का मेरा DSN नेम आ गया। सपोज आई वांट टू रिमूव इट, जस्ट आई टेक द, मैं यहाँ को उसको रिमूव करता हूँ। तो ये स्टेप्स जो है वो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हाउ टू क्रिएट द DSN नेम। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो डेटाबेस है, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, एक टेबल है, सिंपल 4 फील्ड्स है, यहाँ पे मेरा सिंपल वहाँ पे डेटा है। तो अगर आप प्रोग्राम देखते हैं कि आउटपुट में प्रोग्राम क्या आ गया, प्रोग्राम में क्या किया था मैंने, क्यूरी फायर किया था। क्यूरी में क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो क्या है मेरा, यह टेबल नेम है। और क्यूरी क्या थी, वेयर द सिटी इक्वल टू मुंबई। तो मुंबई के दो जो भी रो है वो सचिन तेंदुलकर या अक्षय कुमार, तो उसका जो आउटपुट है सचिन तेंदुलकर या अक्षय कुमार, ये मेरे को मिल रहा है। तो आप अगर देखते हो कि प्रोग्रामिंग करने के लिए बेसिकली स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रोग्राम का आउटपुट आता है अगर आपके स्टेप्स बराबर है तो इसलिए हम पहले आज जो है ड्राइवर इंटरफेस देखेंगे। तो व्हाट इज द ड्राइवर इंटरफेस? अ ड्राइवर इंटरफेस इज ए एक्सेस अ डेटाबेस थ्रू इट्स ड्राइवर। ओके, तो ड्राइवर इंटरफेस इज मेन पर्पस क्या है उसका, बेसिकली मेक द एस्टेब्लिश द कनेक्टिविटी ऑफ द जावा एप्लीकेशन विद द डेटाबेस। जावा एप्लीकेशन का और डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए हमको ड्राइवर इंटरफेस यूज करते हैं। तो फॉर दिस पर्पस वी हैविंग द वन मेथड, तो उसका नाम क्या है, फॉर नेम मेथड। तो फॉर नेम मेथड क्या करता है, इट कैन बी लोड एंड रजिस्टर्ड अ डेटाबेस ड्राइवर in just one step to connect the Java application with the database. So for name, what is the for name? The for name is to load and register the database driver in one step. Okay, तो यह सबसे मेन है। for name is registered a database driver in one step। तो उसका सिंटेक्स क्या है, क्लास डॉट फॉर नेम और फिर इन ब्रैकेट ड्राइवर जो भी है पाथ जो है हम अभी एक्सेस में कनेक्ट किए थे, तो हमारा पाथ क्या था, सन डॉट JDBC ODBC JDBC ODBC ड्राइवर। ओके, तो यहाँ जो है मेन अब हमारा ड्राइवर का नेम है, कनेक्ट का पाथ है वो हमने दिया है। तो यहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम सन डॉट JDBC ODBC ड्राइवर, यह इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, क्लास डॉट फॉर नेम। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यह प्रोग्राम में सिंपल क्लास डॉट फॉर नेम सन डॉट JDBC ODBC ड्राइवर। तो यहाँ पे आउटपुट में हमने दिखाया कि सिस्टम ड्राइवर इज लोडेड। तो ये अगर फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, तो सेकंड स्टेप कौन सा है हम देखेंगे आज। तो सेकंड जो है हमारा क्लास कौन सा है, ड्राइवर मैनेजर क्लास। अब यह ड्राइवर मैनेजर क्लास इज प्रोवाइड्स द गेट कनेक्शन मेथड टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो इट रिक्वायर्ड टू पास द डेटाबेस URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है इसमें, इट प्रोवाइड्स द गेट कनेक्शन मेथड। क्या है इसमें, गेट कनेक्शन मेथड हमको अवेलेबल है और दैट मेनली सपोर्ट्स टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे और एक हमारा रोल है कनेक्शन ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर सिंटैक्स देखते हो तो स्टैटिक चार मेथड्स है, रजिस्टर ड्राइवर, डी रजिस्टर ड्राइवर, और उसके बाद में गेट कनेक्शन विद द स्ट्रिंग URL वगैरह। तो थोड़ा सा इसमें
आप अगर देखते हो कि अगर बेसिक सिंटेक्स क्या है, देखिए आप, स्टैटिक कनेक्शन। अभी कनेक्शन ये हमारा इंटरफेस है, और गेट कनेक्शन स्ट्रिंग यूआरएल, यही हमारा मेन है। हमको ये थर्ड नंबर का ही मेथड यूज़ करना है। बाकी हम रजिस्टर ड्राइवर या डी रजिस्टर ड्राइवर ये हम कम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इट क्रिएट्स द कनेक्शन विथ गिवन डेटाबेस यूआरएल। आपको यूआरएल क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। यूआरएल इज फॉर्मेट इज स्पेसिफाइड, हमने देखा स्पेसिफिक, वहाँ पे देखा है प्रोटोकॉल। अब आपका उसके बाद में कोलन सब प्रोटोकॉल कोलन डीएसएन नेम। अब प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, यहाँ पे जेडीबीसी। तो प्रोटोकॉल जेडीबीसी प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू रीड द यूआरएल। यूआरएल रीड करने के लिए हमको जेडीबीसी प्रोटोकॉल लगता है। उसके बाद में सब प्रोटोकॉल कौन सा है हमारा, जेडी ओडीबीसी। तो सब प्रोटोकॉल इज अ जेडीबीसी ड्राइवर नेम। अब जेडीबीसी के ड्राइवर का नेम कौन सा है, वो हमारा नाम है। यहाँ पे ड्राइवर का नेम कौन सा है हमारा, ओडीबीसी। और फिर डीएसएन नेम, डीएसएन नेम इज व्हाट, नेम ऑफ द डेटाबेस दैट वी प्रोवाइड व्हाइल क्रिएटिंग द जेडीबीसी ब्रिज थ्रू कंट्रोल पैनल। जो हमने अभी देखा है कंट्रोल पैनल में कि एक हमने एक डीएसएन नेम क्रिएट किया था, तो वो हमको यहाँ पे देना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर यह स्टेप आपकी अगर सक्सेसफुली हुई तो ही डाटाबेस कनेक्टिविटी होता है। अगर यह नहीं होता है तो देर इज अ प्रॉब्लम विथ योर द सॉफ्टवेयर। ओके, तो सिंपल है। डीएसएन नेम बनाओ, उसके बाद में यूआरएल स्ट्रिंग बनाओ, कनेक्शन गेट कनेक्शन के साथ में उसको अटैच करो, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपको मिलता है। ये सेकंड स्टेप होने के बाद में आपको क्या मिलेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपको कहाँ यूज़ करना है, सामने वाले स्टेप में, जैसे कि स्टेटमेंट क्रिएट स्टेटमेंट में हमको कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज करना है। देखिए क्योंकि देयर इज हिरार्ची फ्रॉम वन स्टेप टू द अनदर स्टेप, सेकंड स्टेप टू द थर्ड स्टेप। तो सेकंड स्टेप हमको आउटपुट क्या दे रहा है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, तो कनेक्शन, तो यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे हम। ये देखिए ड्राइवर मैनेजर क्लास, बेसिकली इफ यू लोड द फर्स्ट ड्राइवर देन यू कैन एस्टेब्लिश अ कनेक्शन थ्रू दिस ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड। अब यहाँ पे मैंने जो भी 3 कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, फर्स्ट इज द गेट कनेक्शन स्ट्रिंग यूआरएल। अब यूआरएल क्या है, कौन सा है तुम्हारा, जेडीबीसी कोलन ओडीबीसी कोलन माय डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स कौन सा है यहाँ पे, एक सिंपल है। तो जो भी है आपने फिर हमको क्या क्रिएट करना है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन इन ब्रैकेट यूआरएल। ओके, तो बेसिकली ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन इन ब्रैकेट यूआरएल, यही आपको यूज करना है। यूआरएल क्या है आपका, जेडीबीसी ओडीबीसी डीएसएन नेम। सेकंड है कंस्ट्रक्टर गेट कनेक्शन स्ट्रिंग यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड। जैसे कि आपका अगर यूजर कोई डेटाबेस को आपको यूजर नेम या पासवर्ड है तो वहाँ भी आप दे सकते हो। और फाइनली गेट कनेक्शन विथ यूआरएल विथ प्रॉपर्टीज इन्फो। प्रॉपर्टीज इन्फो एक क्लास है। in this we can be set the properties of our the username and password. So most of the times we never use this get connection and properties class. So for the simpler one we use the get connection string url. Okay, so I think you know the basic steps of our the database connectivity of this first step, कनेक्शन इंटरफेस एंड ड्राइवर मैनेजर क्लास। तो
हमको हमने शायद अभी यह 2 स्टेप देखे। पहला स्टेप रजिस्टर्ड